Good morning, cute faces. Myself, Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School Talk. Students, in previous video, we learnt about neutralization reaction in which acids, they react to bases to cancel out each other's effects by making salt and water, and those reactions are exothermic as heat is produced in those reactions. These neutralization reactions, they are very important in our daily life. They are helpful to us in many ways. So in today's video, we are going to study some of the practical applications of neutralization reactions in our day-to-day life. We are starting with the first practical application of neutralization reactions in indigestion. We have studied about the digestion process in animals in chapter number 2 of science, nutrition in animals. In that we learned that in a stomach there is one acid present named as hydrochloric acid. The function of that acid in a stomach is to help in the proper digestion of food and to kill some of the bacteria and germs that might enter in our body along with the food particles. Students, some of the times there is excessive secretion of that hydrochloric acid in our stomach due to overeating or due to the eating of a lot of spicy food. तो जब हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज indigestion. Sometimes this indigestion condition is very painful to us. We feel a lot of burps, बहुत खटी डकारे शोर burps हमें आती हैं. So that is uneasy, बहुत पेनफुल होता है, कभी स्टमक में बहुत पेन होता है एब्डोमेन रीजन के अंदर. So that is due to the excess of formation of acid in our stomach. And neutralization reactions में we learn कि जब भी कोई acid present है तो how we can cancel out the effect of that acid by using the base. अगर हम वहाँ पे base use करेंगे तो acid का effect cancel हो जाता है. So to cancel out the effect of hydrochloric acid in our stomach, we used to take milk of magnesia. Milk of magnesia की tablets market में available होती हैं, and the formula of milk of magnesia is MgOH whole twice. तो इनको जब हम intake करेंगे, as this milk of magnesia, it contains hydroxyl group, and on dissolving in water it produces OH minus group, that means the hydroxide group. So we can say it is a kind of base. So to prevent that, to cure that acidity which is caused due to the excess of secretion of hydrochloric acid, is cured by taking milk of magnesia tablets. So this milk of magnesia, it is also called as antacid. इसको हम antacid भी कहते हैं. Antacid का मतलब क्या है? Those chemical substances which work anti to the acid, जो acid के बिल्कुल anti work करते हैं, opposite work करते हैं, उन्हें cancel out कर देते हैं. Those are called as the antacid. The next practical application of neutralization reaction is in ant bite. In beginning of this chapter, we discussed that red ants and bees, they contain one acid in their sting which is called as formic acid. That is also called as methanoic acid. या तो इसको कहते हैं formic acid or it is pronounced called as methanoic acid. So this methanoic acid, जब भी हमें रेड एंट या बीज बाइट करती हैं, वे फील अ लॉट ऑफ पेन, बहुत ही बर्निंग सेंसेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है क्योंकि इनके स्टिंग में प्रेजेंट है एसिड. तो एसिड को फिर से कैंसिल आउट करने के लिए व्हाट वी नीड टू यूज सर्टेन काइंड ऑफ बेसिस. हम वहाँ पे कुछ बेसिस को अप्लाई करेंगे जो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं. व्हाट काइंड ऑफ बेसिस कैन बी यूटिलाइज टू कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इन stings of ants? So that can be cancelled out either by using baking soda solution. Formula is NaHCO3. इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं. So this baking soda, इसका हमने solution prepare कर लिया, baking soda powder लिया और फिर small amount of water add करेंगे, एक paste जैसा prepare होगा. And on applying that paste,
ऑन द बाइट ऑफ द एंड, जहाँ पे एंड ने स्टिंग किया है, हमें बाइट किया है, वहां पे अगर ये अप्लाई करेंगे तो बीइंग बेसिक इन नेचर दिस बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एंट बाइट। और वी कैन यूज कैलेमाइन सॉल्यूशन। दिस कैलेमाइन सॉल्यूशन इज केमिकली जिंक कार्बोनेट, formula is ZnCO3. The zinc carbonate, it is also basic in nature, so it also cancel out the effect of ant bite. Friends, over here I would like to introduce one more thing to you, that honeybees and red ants, they contain formic acid, methanoic acid in their stings. But what is the condition with the wasp, जो yellow color के flying insects हैं, उनमें क्या present रहता है? Those wasps, they contain base in their stings. उनके stings के अंदर basic medium present रहता है। तो वहां पे अगर किसी wasp ने हमें bite किया तो ऑलरेडी वहां पे बेस प्रेजेंट है वास्प की स्टिंग के अंदर, और वहां पे अगर हम कोई भी एसिडिक कोई बेसिक सॉल्यूशन यूज करें, से वहां पे हमें बेकिंग सोडा सॉल्यूशन यूज किया या कैलेमाइन सॉल्यूशन यूज किया, या सिंपली अगर वहां पे हम सोप को, डिटर्जेंट को भी अगर रब कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन दैट बर्निंग सेंसेशन, दैट पेन विल बी इंक्रीज, क्योंकि ऑलरेडी बेस था, हम उसके अंदर और बेस एड ऑन कर रहे हैं। तो बेस को कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वी नीड टू यूज एसिड। हम वहां पे कोई भी एसिड यूज करें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म के अंदर ट्राई टू अवॉइड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एज दे आर स्ट्रॉन्ग। तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज ए विनेगर, जो हमारे घर पे अवेलेबल रहता है। हमने सिट्रिक एसिड को यूज कर लिया, तो इनके अंदर एसिड प्रेजेंट है जो उस बेस के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। The next practical application is in soil treatment. Friends, जो soil की nature है, उसका जो medium है, that shouldn't be either too acidic, it shouldn't be too basic too. अगर बहुत acidic soil का medium होगा या basic होगा, in those mediums plants they will not able to grow properly, healthy क्रॉप यील्डिंग नहीं हो पाएगी, वहां पे प्रॉपर्ली प्लांट्स ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे मॉडरेट कंडीशन चाहिए ना, तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो सॉइल, नहीं बहुत ज्यादा बेसिक हो। तो इन केस इफ द सॉइल इज एसिडिक, अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुकी है, अब वो सॉइल एसिडिक कैसे हो सकती है? आइदर ऑन कंटिन्यूएशन यूज ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स, अगर हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स सॉइल में यूज कर रहे हैं फार्म के अंदर, तो आफ्टर सच इन टाइम पीरियड दैट सॉइल विल टर्न इनटू दी एसिडिक मीडियम, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। तो उस एसिडिक में प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर सकते प्रॉपरली, तो वहां पे फार्मर्स क्या यूज करते हैं? दे यूज क्विक लाइम। Formula is CaO. It is called as calcium oxide, or they use slaked lime. Formula is CaOH whole twice. Its chemical name is calcium hydroxide. So this calcium hydroxide and calcium oxide, being basic in nature, they neutralizes the effect of acids in the soil. In case अगर soil बहुत ज़्यादा basic हो चुकी है already, तो उस बेसिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर्स क्या यूज करते हैं? दे यूज एनी ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ कंपोस्ट या मैन्यूर को वहां पे यूज करेंगे। सो दीज कंपोस्ट और मैन्यूर दे प्रोड्यूस एसिड्स इन द सॉइल, वो सॉइल रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं सॉइल के अंदर, तो वहां पे बेसिक का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। Come to the next practical application of neutralization, that is in factory waste. जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, that contains a lot of acid in that, and if that polluted water which is released from the factories in the form of waste material, if that goes into any water body, अगर किसी भी water body में वो जाता है, so what it can do over there, इसका क्या impact होगा water bodies के अंदर? water body में जितने भी aquatic life है, all the plants and animals which are living in the water, their life will come in the danger, उनकी लाइफ बहुत ही डेंजर में आ जाती है, उनकी कई बार डेथ कॉज हो जाती है ड्यू टू दोज एसिड्स प्रेजेंट इन दी फैक्ट्री वेस्ट। तो जब भी फैक्ट्री से वेस्ट रिलीज करते हैं, तो उनको किसी भी वाटर बॉडी में कहीं भी रिलीज करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ट्रीटेड विद सम बेसिक सॉल्यूशंस, ताकि उनका जो एसिडिक नेचर है वो कैंसिल आउट हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए।
The next used practical application is in the soda acid fire extinguishers. जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं विच आर यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर, उनके अंदर जनरली 2 केमिकल्स यूज होते हैं. द फर्स्ट केमिकल इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड द सेकेंड वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमने पढ़ा था NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. So these 2 chemicals are separately present in the soda acid fire extinguishers. तो अगर कहीं पे भी फायर होती है, उसे हमें एक्सटिंग्विश करना है, बुझाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, either we turn that soda acid fire extinguisher upside down, या तो उसको उल्टा कर देते हैं, या जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है उसको ब्रेक करते हैं वहां से किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करके. सो डूइंग ऑल बोथ दीज सिचुएशन, अगर हम दोनों ही चीजों को अप्लाई करते हैं, या तो हम एक्सटिंग्विशर को अपसाइड डाउन कर दें, या ऊपर जो उसकी नोजल प्रेजेंट है उसको अगर हम पूरा ब्रेक करते हैं, ऊपर जो लगी हुई होती है एक स्प्लंजर उसको, तो क्या होगा, दीज 2 सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, दे विल रिएक्ट टू ईच अदर, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे. सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ काइंड ऑफ बेस, ये बेस होता है. तो दोनों जब एक साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर, दोनों ही न्यूट्रल नेचर के होते हैं. एंड along with salt and water one more substance is formed over there which is कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का भी वहां पे फॉर्मेशन होता है. This carbon dioxide it pushes the water inside the extinguisher to come out onto the fire, ताकि वो फायर के ऊपर जाए और वो फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम कर दे. CO2 खुद भी क्या करती है, इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग थिंग्स, कोई भी चीज अगर जल रही है तो उसको एक्सटिंग्विश करने में, बुझाने में वो हेल्प करती है. So this is how these soda acid fire extinguishers they actually work. The last practical application which we are going to discuss in today's video is an example of nature. So in nature के अंदर there are certain plants which are called as nettle plants. तो इन नीचल प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर एक एसिड प्रेजेंट है, दैट इज द सेम एसिड प्रेजेंट इन रेड एंड वाइट स्टिंग्स which is formic acid और methanoic acid. तो अगर मान लो we are walking nearby these nettle plants, अगर इनको हम टच करके पास से निकलते हैं तो इनकी लीव्स अगर हमारी स्किन को टच करती हैं तो टच करते ही क्या होगा, they will inject that formic acid और methanoic acid in our skin. तो स्किन में जैसे ही जाएगा we will feel the burning sensation over there. So नेचर ने क्या कर रखा है, अपने आप को नेचर खुद बैलेंस करती है. एंड फॉर दैट जहाँ पे भी नीचल प्लांट प्रेजेंट रहते हैं नेचर के अंदर, उनके पास एक और प्लांट ऑटोमेटिकली बाय नेचर ग्रोथ करता है, दैट इज नेम्ड एज डॉग प्लांट. तो अगर कभी भी नीचल प्लांट हमारी स्किन को रब कर रहा है और वहां पे हमें बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, तो हमें वहां पे क्या करना होता है, वी सिंपली प्लग द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट. उन डॉग लीव्स को अगर हम उस बर्निंग एरिया, सेंसेशन वाले एरिया के ऊपर अगर रब करेंगे तो क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन विल बी रिमूव, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. Why it is so? Because these dog leaves they contain base in their leaves. इनकी बेस लीव्स के अंदर एक बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है जो एसिड के इफेक्ट को कम्प्लीटली कैंसिल आउट कर देता है. So in today's video we learned some of the practical applications of neutralization reactions. Here we wind up at this chapter number 5, acid, bases and salts. Thanks for watching.